Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hey everyone, welcome to the fourth video of Rust series. Today we will cover what are enums, what are pattern matching, how it works in Rust, so how we can use it in Rust. So basically, first let's recap our let's recap the code of the last lecture. So in our last lecture, we have covered the structs, how traits work, the custom traits work in Rust, and how we can implement the structs uh, with different kind of functions and with traits as well. So this is the code. Let's move this code into a separate file. But before moving forward, okay, so this one is a macro, debug macro, which is used for debugging, which enables us to print the struct directly into the terminal. So this is it. Let's copy this code and let's move it to lesson 4. Yes. Oh, it should be lecture 4. All right, let's leave it for now. Mhm. Okay, so and all right, I have cleared all everything and let's move on to the Rust book. So today we will cover the chapter 6 of the Rust book. So I have already, I guess we have reviewed what are enums. I guess I have told you enums are kind of a group of data, or you can say we can define the type through a specific enumeration. So let's see what Rust book says. In this chapter, we will look at enumerations, also referred to as enums. Enums allow you to define a type of enumerating its possible variants. So we have different variants of a specific type. Let's say अगर मेरे पास मैंने define किया enum of color, and let's take an example. Uh, let's go into the code. So let's say if I have taken a color and I'm saying that we have an enum of a color. So inside this enum, we can define different variants of colors. Let's say yellow, blue, X and XYZ, whatsoever. So I can pass any of the variants of a specific uh, category or a specific category of data. सो कोई भी एक bunch of data जो कि similar category का हो, ये हमारे ऊपर choice है. However, it is much better. uh, however, I guess we have reviewed, we have learned JavaScript in our previous lectures. So जो हमने वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प में हमने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ा था enums क्या होते हैं. तो enums in T in TS we used to define enums like color, and we used to define it like, let's say, yellow is equals to yellow, blue is equals to blue, and so on and so forth. So how we used to define the enums in TypeScript. However, we define enums like this in Rust. So let's move to let's go back to the book. So all right. So next we will explore a particular useful enum called option. So option is another kind of um, if we are facing if we think that our data will be might be we will get the data as null. अगर मैं data कोई भी null आने वाला है तो फिर we use option types. What are options types? We will review that. We will cover that as well. Matching in the match expression makes it easy to run. Match expression को देखेंगे हम. If let block को देखेंगे कि if let किस तरह work करता है. So let's move to the 6.1 chapter. So, all right. So, where structs give you a way of grouping together related fields and data, like a rectangle with its width and height. Enums give you a way of staying a value is one of a possible set of values. Structs में क्या होता है कि हमारे पास set of data होता है. Mostly दोनों similar हैं. Structs और enum में. Struct let's say color, और लेट्स से यूं कर लेते हैं रेक्टेंगल. सो हम इसमें विड्थ और हाइट और इस टाइप बॉक्स कर देते हैं U32.
ठीक है, हम इट शुड बी I32 और व्हाट्सएवर। सो लेट्स से मैंने रेक्टेंगल का एक स्ट्रक्ट बना लिया जिसमें मैंने विड्थ और हाइट पास कर दी। अब है दोनों सेम काइंड ऑफ, इसमें कलर में क्या है कि कोई एक हमें ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। लेट्स से इफ आई एम सेइंग दैट I have filled the rectangle with color yellow. So rectangle, or however, if I want to define uh, a rectangle, so I must have to pass both the values width and height. Let's say 32 and height 32. If I try to uh, uh, if I just want to pass only width, I cannot pass only one of the option. Let's say कि मैं सिर्फ वेट पास कर दूं, हाइट को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें दोनों चीज़ें पास करनी पड़ेंगी स्ट्रक्स में। सो लेट्स गेट बैक टू द बुक अगेन। लेट्स लुक एट सिचुएशन वी माइट वांट टू एक्सप्रेस इन कोड, एंड ये काफ़ी सारी थ्योरी है। इसके बाद एक एग्जांपल आ जाती है जो कि वो एग्जांपल करके बता रहे हैं कि एग्जांपल में किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गेट इनटू इट। मैं यहाँ से इस पर आ जाता हूँ। लेट्स से कोई एक हम कलर पे ही आ जाते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ गेट कलर। बुक वाली एग्जांपल में शायद आईपी एड्रेस वगैरह, या दे आर passing the IP addresses. So let's take a simple example for now. So let's say color, and I'm saying that it should be color, and it will return, let's say, boolean get color or is yellow. मैं चाह रहा हूँ कि is yellow कलर आ जाए। अभी फॉर नाउ मैं इफ लेट की तरफ भी आ जाता हूँ, वो मैं समझा दूंगा कि किस तरह इफ लेट और मैच एक्सप्रेशंस वर्क करते हैं। सो लेट्स से इफ आई वांट टू, लेट्स गेट अ कलर फॉर नाउ, कलर, ठीक है, एंड देन लेट मी पास कलर, एंड आई कैन pass one of the color blue or yellow select. Let's say I want to pass in or return the yellow color, and if I want, and then color, color yellow. There is no need to pass any argument for now because I'm not accepting anything. Let's remove this one. Let's remove this thing from here. And I'm getting the FMT error display debug. So let's do it right here. Drive debug, debug. All right. So let's save it here and pass. And let's do it. Cargo. Right. So right now I'm getting color and it is yellow because I'm returning the color yellow from this function. So let's say अगर मैं if let के ब्लॉक को आगे जाके देख लेते हैं, अगर अब बुक के ही एग्जांपल को आप कंसिडर कर लें। So let's say they have created an enum v4 and v6 version 4 version 6 of an IP address kind. An IP address, we can pass any of the enum to a specific struct to, let's say मैं अगर कह देता हूँ color, third option, let's say color, I can pass this as well, and let's say मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ let's say let rectangle, let looks rectangle, and let's say weight 3, height 2, and color is, let's say, if I cannot pass an string directly, a string directly, let's say मैं कोई भी string directly pass नहीं कर सकता। मैं अगर सेव करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा। यहाँ पे I can see that we are getting an error that mismatch types, and it is expecting the type color. What is color? Color is an enum. So let's say मैं यहाँ पर अब मैं color, और मैं यहाँ पे let's say blue पास कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सेव करके मैं let me print red black, ठीक है, और मैं यहाँ से
just do it. Remove this comment और मैं यहाँ पे print करता हूँ carborane. So I'm getting, let's zoom in a bit. Okay, so now I'm getting color rectangle width 3 height 2 and sorry width 3 height 2 and color blue. So I'm getting rectangle struct in terminal which I am passing through or which I am printing through this. All right, so let's back to the code. So here they are, they have created an a variable home and in which they have passed the struct and they have passed the values IP address kind v4. IP address kind is an enum and they have passed v4 and they have address is a string, they have passed a string. So yeah, so there is another thing that we can go for. Let's say अगर मुझे यहाँ पर मैं कह देता हूँ, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर enum बना लेता हूँ कि लेट्स से इन्हीं की एग्जांपल को ले लेते हैं. अगर मैं बुक वाली एग्जांपल पे अगर आ जाऊँ, बुक की एग्जांपल क्या है? IP एड्रेस. So let's say IP address and they have taken v4 string and v6 a string. What does this mean? We can pass a specific string to this enum. Let's say v4 v6. So अगर मैं यहाँ पर इंटेलिजेंस पे भी देखूँ तो ये क्या मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ पर enum IP एड्रेस है, इसके अंदर v4 है और v6 है जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ. तो अगर मैं इसको यहाँ पर कंसोल भी करूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पर कह देता हूँ रेक्टेंगल की बजाय मैं एक और स्ट्रक्ट बना लेता हूँ. लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड एज वेयर इज दिस स्ट्रक्ट. ये रहा, ये एक स्ट्रक्ट है. ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ. ये स्ट्रक्ट क्या कह रहा है? काइंड आईपी एड्रेस काइंड है और सॉरी और इसके बाद एड्रेस स्ट्रिंग है. आईपी एड्रेस काइंड में क्या हो सकता है? मुझे बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस काइंड, इट्स आई एड्रेस काइंड. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस काइंड बता दिया. अब मैंने एक स्ट्रक्ट ले लिया. लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लेट आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस और इसमें मैं यहाँ पे काइंड पे आ जाता हूँ. लेट्स से और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं V4 पास करूँ. V4 में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मुझे एक ब्रैकेट दे रहा है, यानी जिसके अंदर मुझे एक वैल्यू पास करनी है, स्ट्रिंग. अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ, लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग फ्रॉम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से हेलो, और लेट्स टू पास जीरो द वैल्यू ऑफ लोकल होस्ट, और दूसरा क्या है? एड्रेस. एड्रेस इज ए स्ट्रिंग. सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस एड्रेस और मैं यहाँ पर ड्राइव मैक्रो दे देता हूँ, डीबग मैक्रो. ठीक है, मैं यहाँ पे अब डजन इम्प्लीमेंट डीबग. ओके, सो मैंने जब स्ट्रक्ट पे डीबग मैक्रो पास किया तो इस ये क्या बता रहा है कि मुझे इनम पे भी डीबग मैक्रो पास करना ज़रूरी है. सो अब मैंने यहाँ पे डीबग मैक्रो पास कर दिया और मैं यहाँ पे कार्गो रन करता हूँ. तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आईपी एड्रेस एंड इट्स प्रिंटिंग आईपी एड्रेस. द काइंड इज v4 and it has a string 127.0.0, the IP address. So using enums has even more advantages. Thinking more about our IP address type, at the moment we don't have a way to store the actual IP address data. So we only know. So here we defined a struct. It is explaining how the code is working. The first is home and it has the value IPv4 IP address kind v4, its kind with associated address. So individual kind has also an IP address. So the second instance is loop back. So where it is.
loop back, it has a separate, let's say they have passed the IP address kind v6. सो इस तरह करके आप डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है। इसमें यह है कि आप अंड एक यूनिट स्ट्रक्ट है जिसमें आपने जस्ट एक स्ट्रक्ट डिफाइन कर दिया है कि स्ट्रक्ट बता दिया है, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सो अब आ जाते हैं ऑप्शन और उस चीज़ पे, ऑप्शन पे आ जाते हैं। लेट्स से अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। अगर मैं यहाँ पे सबको कमेंट आउट कर दूँ ताकि यहाँ से इसको भी कमेंट आउट कर दूँ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं जावास्क्रिप्ट के या टाइपस्क्रिप्ट की एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें क्या होता था कि हमें नल डेटा, हमेशा कभी कभार नल डेटा आता रहता था जब हम एपीआई कॉल करते थे। जब हम एपीआई कॉल करते थे हमें कभी कभार नल डेटा आता था। तो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट रस्ट इज अ टाइप सेफ लैंग्वेज, वी ऑन रन टाइम, सॉरी, हमें कंपाइल टाइम पे ही पता होता है कि इसकी टाइप क्या होने वाली है। और लेट्स से अगर कोई ऐसा डेटा है जो कि नल आने वाला है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसको बता देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन, अभी जस्ट मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, या तो सम मीन्स कोई ना कोई डेटा होगा, या तो नन, यानी कोई डेटा नहीं होगा मीन्स नल होगा। सम में कोई भी वैल्यू आ सकती है, और नन में कोई भी वैल्यू, लेट्स से मीन्स नल, नल आने वाली नल में। सो अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं लिखता हूँ इनम ऑप्शन। मैं जस्ट अभी फॉर द टाइम बिंग मैं लिख देता हूँ सम एंड नल, या मैं अभी सम लिख देता हूँ। सम में कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, तो अब हमें कोई ना कोई वैल्यू इसको पास तो करनी है। अब वैल्यू आएगी कहाँ से? तो इट मीन्स हमें, जिस तरह हमने टाइपस्क्रिप्ट में एक चीज़ पढ़ी थी, जेनरिक्स। जेनेरिक क्या होते हैं कि हमें नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, तो हम उसको एक जेनेरिक नाम दे देते हैं। कोई भी एक सिंपल इजी वर्ड में समझाता हूँ, तो कोई भी हमने एक लेट्स से एक वेरिएबल असाइन कर दिया टी। तो अब ये क्या होगा, ये टी यहाँ पे हम पास कर देंगे, तो हम इसको बता रहे हैं कि कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, जो वैल्यू होगी टी, जो कि हमें अभी पता नहीं है, वो वैल्यू होगी टी। और दूसरी होगी नन, व्हाट इफ वी आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू, इट इज। सो अगर कोई नल वैल्यू आ रही है तो वो नन में चला जाएगा, एल्स ये ऑप्शन में आ जाएगा। अगर इसी की कोई एग्जांपल अगर बुक से देख लें, अगर मेरे पास बुक में कोई एग्जांपल मौजूद है, अगर यहाँ पे लेट्स सम, ओके, सो अगर मैं यहाँ से ही डायरेक्टली कोई ना कोई वैल्यू एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आ, ओके, सही, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। लेट्स से मैं ये कह देता हूँ कि वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? 5 है, जो कि हम बता रहे हैं कि i32 है। लेट्स से मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ वाई इज एन ऑप्शन जिसकी वैल्यू i32 है, और मैं लेट से पास कर देता हूँ 3, ठीक है। मुझे पता है कि y की वैल्यू फॉर नाउ, ओके, मैं यहाँ पे इसको सम पास कर देता हूँ, सम में 3, ठीक है। ऑप्शन हैव सिमिलर नेम्स बट आर एक्चुअली डिस्टिंक्ट। मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ, मैं बुक वाली एग्जांपल को, मैं i8 ही ले लेता हूँ। is defined the current grade and you haven't passed the um okay, let's come here where they are defining the option। ऑप्शन में इन्होंने सेम काम कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ऑप्शन एंड सम 5। और यहाँ पर it should not throw an error, let's see, std option integer and have similar names but are actually distinct, okay, my bad. So I have already defined an option, and option enum is a pre-built or predefined enum that is predefined by the Rust programming language। So ये है कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन i8 पास कर दिया कि इंटीजर i8 है, और उसकी वैल्यू कोई ना कोई सम पास कर दी। सम मीन्स कोई वैल्यू है अभी फॉर द टाइम। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं लेट से सम इज इक्वल्स टू x प्लस 1,
अब मैं एक्स प्लस वाई करता हूँ। मैं पहले तो ये देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ये ऑटो इन्फर हो गई है, टाइप एक्स की ऑटो इन्फर है, वाई की मैंने टाइप डिफाइन किया जो कि ऑप्शन है। यहाँ पर ये बता रहा है कि सम का रिजल्ट जो होगा यानी जो आउटपुट होगा वो i32 होगा, एस यानी ऐड करेगा, और ऑप्शन एंड में ये कह रहा है कि ऑप्शन होगा, सॉरी, ऑप्शन होगा आउटपुट में। तो जब ऑप्शन होगा तो इट मीन्स कि वो कभी भी नल भी आ सकता है और वो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन पास किया है, तो हम यहाँ पे एक काम ये कर देते हैं, हम लिख देते हैं अनरैप, अनरैप, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो। व्हाट इफ अगर वैल्यू यहाँ पर कोई ना आए, लेट्स से 3 की बजाय मैं यहाँ पे नन पास कर दूं, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि द वैल्यू बाय डिफॉल्ट विल बी जीरो। सो लेट मी प्रिंट द सम, प्रिंट lm sum is equals to uh, sum, and let's console it. Okay, I am getting sum is equals to 5. However, if I instead of none I pass any value, मैं अगर कोई वैल्यू पास करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे आई एम गेटिंग दिस सम इज इक्वल्स टू 8, 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। if I just pass none, it will automatically pick the default value, and instead of getting a null value, it is getting a default value of 0, and that's why it is in result I am getting sum is equals to 5, because it is automatically detecting the default getting the default value 0। सो यहाँ पर आ जाते हैं, बुक में उन्होंने यहाँ पे ये समझा दिया कि किस तरह इसका सॉल्यूशन उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया, गैस जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो नो नीड ऑफ। सो ये कि हमारे पास जब नल यहाँ पे, जब ये मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ऐसी जगह पे इशू आता है जब हमें पता हो कि यार कि कोई डेटा नहीं आने वाला, ऑप्शन टाइप है, मे बी डेटा विल might be null, so we usually pass option statement, or sorry, option enum, and let's move to the match control flow construct. So मैच कंट्रोल फ्लो में क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये कंट्रोल फ्लो ये जो कि हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ लिया है, यहाँ पर 3.5 में कंट्रोल फ्लो। हाउएवर विद enum हम किस तरह कंट्रोल फ्लो को यूज करते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जो कि मैंने अभी शुरू में एक एग्जांपल दी थी गेट कलर की, इसी को एक ले लेते हैं एग्जांपल को। लेट्स टेक दिस एग्जांपल एज अ रेफरेंस एंड कलर, एंड यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको बूलियन पास कर देता हूँ। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। Alright, so I had taken a break because of the adhan, the namaz prayer. Alright, so let's continue with the code. So let's say मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, and because we are learning about control flow, so let's say मैं यहाँ पे कह देता हूँ match, and मैं यहाँ पर कलर पास करता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। लेट्स से अगर हम टाइप स्क्रिप्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता था कि हम क्या करते थे, हम स्विच स्टेटमेंट पास करते थे कि स्विच लेट्स से कलर, एंड यहाँ पर we used to pass case, and let's say color dot yellow whatsoever, color dot yellow, एंड फिर इसके अंदर मैं console dot लगा के और मैं कुछ भी कर देता था। और इसके बाद फिर एक और एंड में लेट्स से अगर मुझे सारे केसेस पास थ्रू करके एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती थी, तो मैं क्या करता डिफॉल्ट, एंड इसके अंदर मैं कंसोल लगा के कुछ भी आप पास कर देते। सो we used to uh, define or we used to follow the control flow code like this in TypeScript or JavaScript. However, in Rust, we do the similar kind of stuff, but with a different approach. Let's say मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मुझे रिटर्न करना है, लेट्स से क्या हो सकता है कि मैं लिख दूँ कलर, और मैं इसमें यहाँ पे पास कर दूँ कलर। मैं आई गेस कमेंट आउट कर चुका हूँ। Alright, so let's uncomment this block, and let's pass this color, and let's say yellow,
यहाँ पर मेरे पास चॉइस है, मैं यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ प्रिंट एलन कलर इज येलो। यहाँ पर मैं मेरे पास चॉइस थी कि मैं कलर इस तरह पास कर सकता था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, या तो मेरे पास चॉइसेस है, मैं यूं कर दूं करूँ कि कलर, अच्छा मैं जब तक सारे केसेस पर पूरा नहीं उतरूंगा जब तक मुझे ये एरर दे रहा है, यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, मिसिंग मैच आर्म ब्लू बिकॉज आई हैव ओनली कवर्ड येलो द टेस्ट केस। व्हाट अबाउट द अदर इनम्स? सो क्या होगा अदर इनम्स का, तो हम यहाँ पे पहले तो इस केस को देख लेते हैं। पहले मैं लेट से ब्लू पास कर देता हूँ, ब्लू, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट एलन एंड कलर इज ब्लू, ठीक है, कलर ब्लू, एंड लेट्स रिटर्न, ओके मैं ब्लू पास कर रहा हूँ, let's for now return true. All right, so mismatched output types. Okay, so I have to return true. ठीक है, और मैं यहाँ से फंक्शन से मैं फॉर नाउ मैं रिटर्न पास कर रहा हूँ bool। ठीक है, मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एलन, या जस्ट प्रिंट एलन की बजाय मैं लिख देता हूँ गेट कलर, और मैं यहाँ पे इसमें पास कर देता हूँ कलर और येलो। सो मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल करूँ, ओ सॉरी कार्गो रन करूँ, so I'm getting color is yellow. What if I have other colors, let's say green, red, uh, whatsoever, white, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एरर थ्रो हो गया कि ये और भी टाइप्स हैं जो कि आपने कवर नहीं की। सो क्या हो सकता है कि मैं एक और काम ये करूँ कि मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूँ, जो कि सेम काम यहाँ पे जो हम टाइपस्क्रिप्ट में करते थे, हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगाते हैं, और सेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि सॉरी practice डी डिफॉल्ट 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 केस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कह देता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कार्बन करता हूँ कलर इज येलो, व्हाट इफ आई पास कलर रेड। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफॉल्ट केस। सो इफ none of the cases are matching, it will go back to the default case. This is a, let's consider this case as a default case and it will print out the default whatever I, let's say अगर मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करता हूँ तो वो कैलकुलेशन हो रही होगी, let's say if I am not प्रिंटिंग इट, सो यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेट्स बस जस्ट बताने का मकसद ये है कि ये एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, और यहाँ पर बाकी सारे स्पेसिफिक टेस्ट केसेस, सॉरी इफ स्पेसिफिक केसेस मैच हो रहे हैं। सो दिस इज अ कंट्रोल फ्लो विथ मैच। सो यहाँ पे let's review their example too. So they are returning U8 directly from the match statement। अगर यहाँ से मैं boolean पास करना चाहता हूँ, मैं let's say एक काम ही करता हूँ, मैं यहाँ से कोई वैल्यू पास नहीं करता, एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन इज येलो, जो कि हमने शुरू में शायद इस एग्जांपल को देखा था कलर का। द इम्प्लीमेंटेशन विल रिमेन सेम, ऑलमोस्ट रिमेन सेम, या सो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हम ट्रू कर देते हैं, और मैं यहाँ से ब्लू हटा के और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ जीरो, और इंस्टेड ट्रू फॉल्स कर देते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न, आई विल पास द रिटर्न टाइप। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड remove the semicolon to return this value, okay my bad, so I have yes is yellow, मैं यहाँ पर आ जाता, sorry, print ln uh, color is yellow, just playing with this function color, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन।
the color is yellow, it's saying false. अगर मैं यहाँ पे yellow ही पास कर दूँ तो it will return true. Yeah, right here you can see it is printing the color is yellow. Yeah, it is true. So let's get back to the documentation. Same example, they are ऑप्शन टी ऑल राइट. सो यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर इन लोगों ने रिटर्न टाइप ऑप्शन रख दी आर्ग्यूमेंट में भी. जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर भी ऑप्शन टाइप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो ऑप्शन टाइप से किस तरह खेलते हैं, यानी ऑप्शन टाइप से किस तरह डील करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इसको एक बार हैंड्स ऑन देख लेते हैं. लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, या इंस्टेड यहाँ पे इसी से कर लेते हैं. तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको कमेंट ऑफ कर देते हैं. और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि व्हाट इफ कलर इज एन ऑप्शन, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लेट्स से फॉर नाउ पूल पास करते हैं. अगर मैं इसी फंक्शन को सेव करूँगा मेरे पास यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा कि expected enum is option, however I am considering it as a normal argument of enum. However, it is not a simple argument of color enum, it is passed uh, through an option statement. So let's say if I consider it sum, and if I do color yellow, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे वही सेम स्पेसिफिक वही काम सेम कर दूँ, लेट्स से ट्रू पास कर दूँ, ट्रू, और यहाँ पर मैं आके नन, और इसमें मैं यहाँ पे कर दूँ फॉल्स. अब अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सॉरी येलो, सम ब्लू सम, ऑलराइट. सो इट इज सेइंग कि आपने बाकी सारे टेस्ट केसेस को कवर नहीं किया. क्यों? बिकॉज हमें डिफाइन करना है कि सम और ये सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं या नहीं. तो यहाँ पे मैं एक काम ही करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सम टू ओ फोर. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कहा कि इसको सम और कोई भी कलर आ जाएगा तो उस पे भी फॉल्स थ्रो कर दे. लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं इसको ऑप्शन स्टेटमेंट के अंदर मैं ओ सॉरी सम, सम और मैं इसमें यूं पास कर देता हूँ. ठीक है. और मैं यहाँ पे कार्गो रन कर देता हूँ. सो इट्स रिटर्निंग, ओ सॉरी इट्स प्रिंटिंग द कलर इज येलो ट्रू. अगर मैं यहाँ पर मैं कुछ पास नहीं करता, मैं लिख देता हूँ ना, अब क्या होगा? it must return print false and it is printing false. अगर मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट में false, यहाँ पे मैं इंस्टेड में यहाँ पे ये कर देता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नंबर प्रिंट कर देता हूँ टू क्लियरिफाई फॉर विच enum value it is printing with what value. So let's say मैं यहाँ पे i32 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 for yellow, any other color except for yellow it will return 2, and if it is a default, sorry, if it is a null or if there is no value it will return 0. So अब मैं यहाँ पर आके मैं none pass किया है, it should return 0. Yeah, right here you can see it is returning 0. What if I pass, instead of none I pass yellow blue? अगर मैं यहाँ पे blue पास कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कार्गो रन करता हूँ, sorry some I haven't passed. This is a great this is a thing that it on compile time we get an error uh, from Rust. So it's that's why we prefer using Rust. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि the color is yellow. Oh sorry, let's remove this thing whatsoever. अगर मैं यहाँ से रिमूव भी कर दूँ कोई मसला नहीं, just focus on this number 2. So यहाँ पर we are getting 2. Why we are getting 2? Because we have passed the default case right here. Let me close this terminal. So we have passed the default case 2. So
whatever the color other than yellow, we will get 2. If we are passing color yellow, it will return value 1. सो यहाँ पर ये इस तरह हो रहा है। अगर हम रस बुक की एग्जांपल को देख लेते हैं एक बार। सो दे आर ऑप्शन दे आर they have created or defined a function plus one accepting argument option I32 returning option I32 matching the argument none some I returning uh, in an integer with an increment of 1. So let's examine the first execution. So this is the theory they are explaining. Matches are exhaustive. We can also pass normal numbers if we are not using. Let's say अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन सम और कुछ भी पास नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे enum के साथ भी डील कर सकता हूँ. If I want to do let's say is even is even color sorry num I32 return. So let's say मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ मैच. We can use if let statement. We will cover it. This might be in a few minutes. So let's say मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. मैं लिख देता हूँ num 2 equals to 0. Sorry, num divisible remainder 2 or oh okay we have to do this with if let statement. So let's say because it will match the argument और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ. मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि let's say if sorry oh, my bad divisible 2 if it is 0. So let's say return 2 else it will return false. ठीक है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ. मैं यहाँ पे let's just comment this out, create a print statement. मैं यहाँ पे कहता हूँ the number 3 is even और the number is even और यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 पास कर देता हूँ let's say and let's do cargo run. The number is even is equals to false because the number 3 is not an even number. Let me pass 2. It should return true and yeah because 2 is an even number. अगर मैं यहाँ पे what if I passed a bigger number. यहाँ पर मुझे error आ रहा है कि literal out of range because I'm only accepting the range of I32 the 32 bit of number. So they have already cleared they have mentioned that the range will be -2 1 because the first bit will be considered as a sign bit in I32. So we will review all these stuff in detail in upcoming lectures where we will be discussing about how systems programming can be done, what are the computer architectures and so on and so forth. So यहाँ पर आ जाते हैं माइनस उसने असाइन कर दिया. इट द फर्स्ट बिट विल बी असाइन बिट. व्हाट इफ आई डू U32. So if I am doing U32 and if I uh, just close this terminal, I'm getting 0 till the positive range. So we are not getting we will not be able to pass the negative numbers in U32 because it is an unsigned uh, integer. Oh, sorry, the unsigned 32 bit of number. So let's say if I'm passing 32, it will work same as expected. The number is even is equals to true. So let's yeah it is mostly completed concise control flow with its if let and let else. It is mostly similar or we can come if we merge both if statement and match statement it will become if let. because if let में हम कंसिडर करते हैं कि let स्टेटमेंट के let सम जैसे यहाँ पर आ जाते हैं सम मैक्स इज इक्वल्स टू कॉन्फिग मैक्स. व्हाट इज कॉन्फिग मैक्स ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा. इसके बाद दे आर कवरिंग ऑल दीज एग्जांपल्स
by defining an enum with a simple values. They have created multi bunch of examples. Right here you can go through each one of the examples on your own. So let's say मैं यहाँ पर आ जाता हूँ. Okay, all right, let's close this terminal and let's comment these all these examples. So let's copy these. All right, let's take this example for now. Or where is this thing? All right, ये हमारी example अच्छी है. इसको यहाँ पे ले लेते हैं और मैं यहाँ पर इसको instead of using match we will use if let statement. So let's remove this. So how we will use declare or how we will use if let statement. So we will define if, we will pass if, let, and we have to let's say if I want, let's say if I say, let's say if I am saying it will, there will be some value in color. Some means there will be any value, it might, it must not be null. So let's say अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि for now, मैं यहाँ लिख देता हूँ अ, यही एग्जांपल को अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ तो बहुत अच्छी एग्जांपल हो जाएगी. या इसी का रेफरेंस ले लेते हैं कि वेयर इट इज. या यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया और मैक्स, व्हाट दिस मैक्स मींस कि मैक्स यहाँ पर उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कोई ना कोई मैक्स वैल्यू होगी जो कि वो कंसिडर कर रहे हैं. मैं लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ कलर येलो. ठीक है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर एंड यहाँ पे मैं कुछ भी लेट से प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट एलन एंड the color is yellow. For now this we should, मैं यहाँ पर आ जाऊँ, I32 रिटर्न करनी है, मैं यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट हटा देता हूँ. रिटर्न टाइप हटा दी मैंने. यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर प्रिंट एलन इस कलर येलो. कलर for the time being just pass blue cargo run. Oh, okay, my bad, I haven't passed option type. Option and yes, right here मैं option color pass कर देता हूँ. Sorry, some, what I'm doing that. क्या हो गया? Color blue. Oh my god. ठीक है, मैंने डिस्प्ले एफएमटी वाली पास नहीं की. इज कलर येलो? No, it is not. The color is not yellow because it's returning an empty parenthesis. अब parenthesis क्यों पास कर रहा है? Why it is returning empty parenthesis or printing empty parenthesis? अगर अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ, एल्स स्टेटमेंट को बाद में देख लेते, पहले यहाँ पर मैं कलर डॉट येलो लिख देता हूँ. येलो कलर कार्गो रन, और यहाँ पर color yellow if some value is yellow, if some color yellow, it should print the color is yellow. Alright, yeah, it is printing the color is yellow because I'm not returning anything. So why I have just remove this thing for now. Or yeah, right here I can see the color is yellow, it's printing right here. So what if अगर मैं यहाँ पर येलो स्पेसिफिकली नहीं पास करना चाहता, मैं बोलता हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर पास कर देता हूँ, सेम एज वी यूजुअली डू इट इन मैच स्टेटमेंट. सो लेट्स से we the value is not none or null whatsoever. अगर मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे the value is not none or null, अगर मैं यहाँ पे ब्लू भी पास करूँगा तब भी मुझे प्रिंट स्टेटमेंट नजर आएगी. Sorry, yeah, the value is not null.
what if I pass none? मैंने नन पास किया, मुझे कुछ भी प्रिंट में नज़र नहीं आ रहा। सो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे मैं एल्स लगा दूँ, एल्स लिख दूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ दी वैल्यू एस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कार्गो रन करूंगा तो मुझे एल्स ब्लॉक प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, दी वैल्यू इज नन और नन। सो यहाँ पर इफ लेट का क्लियरली ये वाला इस तरह डिफाइन होता है। इफ लेट स्टेटमेंट इट इज मोस्टली सेम एज वी यूजुअली डिफाइन इट इन मैच स्टेटमेंट। हाउएवर देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस, और वी कैन से इट we can, if we merge if statement and if else statement and match statement will become if let. So यहाँ पर इस तरह होगा, और they have given all these examples. Let's say if let they have passed the enum coin quarter, if it is coin quarter coin, and they have created a nested if statement. So inside if let they have passed if statement, so state if it state is existed. So we can do this thing right here. Let's say मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यार, यहाँ पर आके मैं कोई एक दूसरी एग्जांपल या क्या यहाँ पे ही बना लेते हैं स्ट्रिंग। सही है। और अब मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ येलो, सॉरी, कलर येलो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कलर येलो है और इसके अंदर इसकी वैल्यू मैं कुछ भी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, स्ट्रिंग फ्रॉम ABC। ठीक है, जब जब कलर येलो होगा तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। और यहाँ पे टपल और बाकी सारी चीज़ों के इश्यूज हैं जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कि एक्सपेक्टेड टपल स्ट्रक और टपल वेरिएंट एंड वी हैव पास द स्ट्रिंग, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और हमने पास कुछ और कर दिया। सो इस तरह की सारी एग्जांपल्स हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहाँ तक आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टफ वी हैव covered till now is mostly done. If state dot existed and it is done, describe quarter. And in summary, we have now covered how to use enums to create custom types that can be one of a set of enumerated values. We have shown how the standard libraries option T type helps you use the type system to prevent errors. When enum values have data inside them, you can use match or if let to extract the values. So we can you extract the values through if let or match statements. So in upcoming lectures, in lecture 7, in chapter 7, we will cover how what are crates. Crates are similar to the package JSON dependencies. We can, let's say if we want to use a specific library, so we have to install a package from crates, let's say rocket create rocket. It is a function, sorry, it is a library, or you can say a dependency, rocket.rs. So we can install, let's say अगर मैं यहाँ पे आऊँ crates पे, तो यहाँ पे मुझे crates IO पे, यहाँ पे पैकेजेस की रजिस्ट्री पे crates IO पर मुझे नज़र आ जाएंगी कि हमें किस तरह इंस्टॉल करना है। सो आई कैन सी दैट वी कैन use this statement cargo at rocket. So I can install rocket through this command. I can, let's say I can pass cargo at rocket and it will install all the dependency. Uh, oh, oh, sorry, it will install the package rocket inside my in my project. So ये है हमारा क्रेट्स वाला चैप्टर में। इसके बाद एक चीज़ आ जाएगी एरर हैंडलिंग। सो हाउ वी handle errors in Rust. So we can define it through result enum. So mm, let's say मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं कोई एग्जांपल अगर मेरे पास मौजूद हो तो enum, जैसे हमने ऑप्शन के लिए कहा था कि ऑप्शन enum
ऑप्शन और फिर हम उसमें जेनेरिक पास करके और फिर उसमें हम क्या करते थे, सम और नल कर देते, सम और नन कर देते थे। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ओके और एरर होगा। ओके और एरर, लेट्स से मैं रिजल्ट जस्ट सॉरी रिजल्ट की, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ओके, सॉरी ओके, और मैं उसमें टी और एरर, या मैं यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। या मैं यहाँ पे यूं कर सकता हूँ, वैल्यू ओके में वैल्यू आ जाएगी और एरर में ई आ जाएगा। सो इट इज अ जेनेरिक टाइप, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे कि enum रिजल्ट वी और ई वी डिफाइंस, वी रेफर्स टू वैल्यू, वी कैन date the letters with different others। हम यहाँ पे जी एच आई जे के वॉट एवर whatsoever हम कुछ भी पास कर सकते हैं। इट्स जस्ट रेफरिंग टू द वैल्यू एंड द सेकेंड विल बी रेफरिंग टू द एरर। सो ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि एरर हैंडलिंग किस तरह हो सकती है। एरर्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एपीआई कॉल्स में ज़्यादा, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट कवर करके आ चुके हैं, तो हम उसी एग्जांपल्स को ज़्यादा रेफर कर रहा हूँ मैं बार बार, कि हम जब Axios की एपीआई व्हाट whenever we used to call Axios API call, so whenever used to call APIs through Axios, so we will get sometime we get values inside try block. Sometimes we get the values inside catch block. Inside catch block, we catch the errors. We used to catch the errors, and inside try block, we used to get the response from the API. So that's pretty much it for now. So let's wrap this up. I guess most we have covered most of the stuff related to uh, control, sorry, the enums and pattern matching and the match control flow and so on and so forth. So I hope you have learned a lot from this video. We have covered everything in detail, in advance. We have reviewed each and every example. So if you have any questions, you can reach out to me on my socials, or you can drop your questions in comments. So I would love to answer your queries. So see you in next video. Bye.